لیکن یہ ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر چلے جا رہے ہیں جی. اب یہ بھی ابھی فی الحال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. کس لیول پہ ہو چکا ہے؟ امریکہ کے لیول پہ ہو چکا ہے, یورپ کے لیول پہ ہو چکا ہے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کس لیول پہ ہو چکا ہے جی؟ ہم تو بنگال کے لیے بھی لڑ رہے تھے, آخر دم تک لڑنے کی بات کر رہے تھے اور سرنڈر کر دیا. اتنے بڑا افغانستان جس میں روس سرنڈر کر گیا, جس میں امریکہ سرنڈر کر گیا, ہم پاکستان کو ادھر دھکیلنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جی کہ ہمیں ہماری بات کو سننا پڑے گا, اور یہ نہیں کہ ہم خاموش رہیں گے جی. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آدمی گھر میں بھی تو مرتا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بھی آدمی مرتا ہے جی. یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں, گورنمنٹ کی بالکل رٹ نہیں ہے. روڈوں پہ ابھی میں کراچی سے آ رہا ہوں, روڈ آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے. سی ایم صاحب کو بولو تھوڑا سا مسلوق تک آ کے, سورب تک آ کے مجھے بتائے. بالکل آپ کی رٹ نہیں ہے. رٹ بشیر زیب صاحب کی ہے, رٹ ڈاکٹر اللہ نظر کی ہے. رات کو گشت پہ وہ نکلتے ہیں, وہ ضلع گشت پہ نکلتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے چڑھ دوڑنا, گورنمنٹ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے, وہ چڑھ دوڑ رہے ہیں. بالکل جی گورنمنٹ کی رٹ ختم ہے. اب یہ جنگ آپ ہار چکے, یہ جنگ آپ آگے بھی ہاریں گے. یہ جنگ کا سلوشن ہے بیرل آف گن سے, آپ بندوق سے, بندوق کی طاقت سے وہ گوریلا آپ ہولڈ کرتے. ہولڈ کیوں نہیں کرتے؟ سی ایم صاحب کا کہنا ہے جی, سولجر بن کے آپ ہولڈ نہیں کرتے. وہ گوریلا وار لڑ رہا ہے آپ کے سامنے. کیوں آپ کے فورسز کے سامنے وہ لوہے کے چنے تو تمہیں چبا آ رہا ہے, تو ہولڈ کرے کیوں تمہارے لیے؟ آپ اس کو مارو. گوریلا وار دیکھا ادھر افغانستان میں, پوری دنیا گوریلا وار میں آپ اسے جیت نہیں سکتے. ہاں جینوسائڈ کر سکتے ہیں, جینوسائڈ بھی نہیں کر, جینوسائڈ 10 سے 15% کر سکتے ہیں. پھر یہ بچے عورتیں بچے جنیں گے, یہ 10 سے 15% کر سکتے ہیں. ادھر آپ کیمیکل ایٹم بم نہیں کر سکتے. کیمیکل ویپن صدام کی طرف پھینکیں گے, پوری کردوں کیا تو صدام کو پھر پھانسی ہوا, آپ لوگوں کو اسی طرح ہوگا آگے جا کے. لیکن یہ حالات اس طرح چلتے رہے. آپ جینوسائڈ نہیں کر سکتے بلوچوں کو, 10 سے 15% اس میں کامیاب ہوں گے. اللہ واسطہ ہے اپنے اوپر رحم کھائیں. جو بہت سارے حکمران آئے گئے, یہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. بلوچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سوسائڈل اٹیکس اتنے کر رہے ہیں. سوسائڈل آج تک ایک مکران میں کوئی, ہم لوگ بولتے تیر قضائی گیلا جان سردار صاحب سمجھتی, تیر قضائی ایک سیکیورٹی فورسز کا ایک سوسائڈل کو لگا ہے. 8-9 کی تعداد میں جاتے ہیں. 170-80 سوسائڈل اٹیکس آپ کے ہو چکے ہیں. عورتیں تو چھوڑ دو, ایک بھی بندہ آپ کی گولی سے نہیں مرا. خود آخر میں پروفیسر لیول کے, لیکچرر لیول کے, وہ اپنے آپ کو مار کے پھر واپس خداحافظ کرتے ہیں, واپس زندہ نہیں آتے. وہ چھوڑے, اس سے بھی اور خطرناک قصہ. ابھی آگے بڑھیں. بلوچ مرچی وقت پجارے جنگا دین پانی, اور یہ جنگے واسطہ, یہ نیلے زرے واسطہ, یہ سرزمین واسطہ. میں اما شہیدہ اما ورنہ وطی ہوں داتا کہ اپا چارہ کا شاعت نہ بن آیا تو چارہ کا شاعت نہ بے بلے آیاں مطار ٹکر کتائی سرزمین واسطہ. آنی ٹکر آنی بھی میرا جواب جو رگی ہے. وہ کس سے بھی اگر میں شہید نہیں ہونا نہیں, میں قومی تحریک کے سودا اجن تھی. بڑا ماں شما بیچاری کیا سودا گرانی دیما ہمارا اشتگی ہے. تم اپنی تعداد پر نہ جانا, اپنے اسلحہ پر نہ جانا. جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. میں تو بھگوڑا ہوتا ہوں زیاد, بھگوڑا ہوتا ہوں میں بھگوڑا ہوتا ہوں. نہیں چھوڑتے ہیں یار, کیا کریں. بغیر کشتکونا میڈے خالی کند بیت کند مرچ میں ٹوکن میں ہیبارن پنجابی مذاق سمجھی پرچیشی نفسیات ایشی خصلت تماند کہ بنگال ٹیما میں بو. جنرل نیازی یک روچ پیش گوشی کی بنگالی حیثیت چھے کرد مردمند معاشہ ختم کنن. آخر نتیجہ میں بو ہمان 90,000 وتی فوجی ہے پترون نشتن در کفتند. اور ایشی خصلت مرچم ایشت مرچم زانگنن مرچم پو بیگنن گوریلا جنگ چھے.
8 बसें पाकिस्तानी जवानों से भरी हुई यहां से गुजर रही थी और यहां पर बीएलए के फाइटर्स ने इतना बड़ा अटैक अंजाम दिया। इस बार प्लानिंग बहुत बड़ी है, इरादे क्या नजर आ रहे हैं आपको बीएलए के? जी समीर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। देखिए, बात यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान में फुल ऑल आउट वॉर चल रही है, पूरी तरह से जंग चल रही है। ये कोई दहशतगर्दी के वाकयात नहीं है, ये अब कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ रिटेलिएशन नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। दिस इज ऑल आउट वॉर। और जैसा मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने बताया है, कल 5 शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हमले हुए हैं और उसमें पुलिस की चौकियां, लेविस की चौकियां और एंटी टेररिज्म स्क्वाड की गाड़ियां, मतलब है यू नेम इट, उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है जिसको टारगेट ना किया। और ये जो बस है, ये 72 सीटर बस है, 72 सीटर बस है, ये जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। तरा सलाम बलूच चौक मेड़ो मेराने बलूच चौक, कही फिक्र कई हयालंत, न गर्मचारी न गुश्न तुन, बस जनान जारा आज हुई है। वतन में मादर, वतन में जन्नत, वतन इबाबत, वतन में जानत, कपन तो बस्ता बलूच चौक, तरा सलाम बलूच चौक मेड़ो मेराने बलूच चौक। सरा दयाबू न किन से पुश्ता के पुश्त किन्जर लगोरे कारें, कुजे में सुनिया कुजे में शाहरी, हमें के गारे में लाड़े ग्वारे, दमाने ब्याह तो तरा मचारे, मकबुल बलूच सर मचारे, तरार पीरे पितानी दुआएं, नबे तो नाकाम बलूच चौक, तरा सलाम बलूच चौक मेड़ो मेराने बलूच चौक। सरा तो सदबर बेकाम कुर्बान, मनी मुदाम हमेशा नसीहत, मना तो असलम वता रियान का, कभी दीमा तो शर जना का, दसाह माने मेड़ो मिड़ा का, बरे तो बाजा बलूच चौक, तरा सलाम बलूच चौक मेड़ो मेरान बलूच चौक। शुमारा माता कुता के लीलो, बेका तो हक्का अदा जमीने, बेबन तो लाका वती कलाशा, बेजाना नसीमत दुर्स तरारा, जो हाद करने हमलाबू, मतुर्स चहेच्चा बलूच चौक मेड़ो मेरान बलूच चौक, तरा सलाम बलूच चौक। मंसूर किधर है यार? मंसूर और अली हसन किधर है? मंसूर और अली हसन कौन? بغير كشتكونا ميديا خالي كانت بيتا كانت مرچ میں ٹوکان میں ہیبارن پنجابی مذاق سمجھی پرچیشی نفسیاتشی خصلت تمام کہ بنگال ٹیما میں بو جنرل نیازی یک روچ پیش گوشی کہ بنگالی حیثیت چھے کرد مردمند معاشہ ختم کنن آخر نتیجہ میں بو اوان 90,000 وتی فوجی ہے پترون نشتن در کفتند اور یہ خصلت مرچم ہے. السلام علیکم. ایک بری خبر مل رہی ہے مشکی کے علاقے سے جہاں پہ فوجی جوانوں کے کانوائی پہ حملہ ہوا ہے. اس حملے میں کوچ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کوچ میں فوجی جوان بیٹھے ہوئے تھے تو فوجی جوانوں کی شہادت کی خبر مل رہی ہے. تھوڑا اپنا غصہ کنٹرول کریں. مجھے پتا ہے آپ کا دہاڑی نہیں ملے گا کہ آپ سکسیس ریٹ کم ہے آپ کی اس کنورسیشن میں, تو مجھے برا بلا بولے شاید وہ خوش ہو جائیں آپ کے جنرل لوگ, لیکن آپ کو امپورٹنٹ وہ کر رہے ہیں. آپ کی امپورٹنس نہیں ہے میرے لیے کہ میں آپ کو کچھ بولوں. میں نے تو بولا ہی آپ کو کچھ. آپ کے لیے میرا امپورٹنس نہیں ہے لیکن آپ کے فوجیوں کے لیے میرا بہت بڑا امپورٹنس ہے, اسی لیے آپ غصے میں آ رہے ہیں. تو بلوچوں کا امپورٹنس ہے, کچھ فہمی ہے یا غلط فہمی ہے. آپ کو سیلف امپورٹنس دی ہوئی ہے بس. جی آپ جرنلسٹ بن گئے وہ اپنے آپ نہیں ہے. میں ادھر بلوچ ہوں کہ میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں, میں تو بلوچ ہونے کا دعویٰ کروں. میں ہوں بلوچ, آپ تو پشتون پنجابی ہیں, تو ادھر کنفیوژن تو یہاں پیدا ہوتا ہے. اب میں بلوچستان کی ہوں تو آپ نہیں ہو. جی آپ پنڈی کے ہیں, جو جس کا نمائندگی کر رہے ہیں آپ وہاں سے. آپ اور سرفراز بگٹی میں بڑا فرق نہیں ہے. پر مری صاحب جو چن چن کر مارنا ہے, ٹارگیٹڈ کلنگ پر وہ اشارہ کر رہی ہیں, اس پر آپ کا ایک جواب آنا چاہیے. جی بالکل, جی چن چن کر مارنا بالکل غلط بات ہے, لیکن یہ بلوچوں کو مار رہے ہیں. اگر بلوچ آزادی پسند فوجیوں کو چن چن کر مار رہے ہیں, جنگ میں ہوتا دونوں سائیڈ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. کون سے سیویلینز کو مارے ہیں؟ یہ شلوار قمیض پہن کے بولتے ہیں بس ہم سیویلین بن گئے. یہ بس میں بیٹھتے ہیں تو سیویلین بن گئے.
ये बंदूक, उस दिन कोई जनरल बोला था, देखो उनके साथ तो बंदूक नहीं था तो मासूमों को मार दिया, फौजी भले हैं लेकिन बंदूक नहीं था, तो हम इंतजार करें कि वो बंदूक अपना पतलून वर्दी पहन के बैज लगा के बंदूक उठाए फिर मारे उसको। ये क्या बेवकूफ बच्चों का बात कर रहे हैं? इन बेवकूफों के साथ कोई डिबेट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू नो दे आर रीजनेबल पीपल, ये हकीकत से बरक्स सोचते हैं। ये प्रोपेगेंडा पे जो बलोचियों को मारा जा रहा है, उनको बच्चों को लंबे लंबे वक्त तक दूर रखा जाता है, उसके बाद से मार के काट के कहीं फेंक देते हैं। थैंक यू। उनकी मौत किसके खाते में जाएगी? ये सारी मौत किसके खाते में जाएगी? बहुत ज्यादा देखती है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। ये जो है ना, ये अपना वो बेच रहे हैं, अपना मंजन बेच रहे हैं। मेरे पाकिस्तानी जो खतरनाक तरीन बात पता चली, शहजाद अकबर ने कहा है कि एक सरकारी अफसर ने उनसे राब्ता किया और उन्हें बताया कि बलोचिस्तान में हर सड़क पे ब्लॉकेज लगा हुआ है। एफसी के जवान पीएलए से लड़ाई करने से डरते हैं, उनका सामना करने से डरते हैं हमारे एफसी के जवान। ये शहजाद अकबर को एक सरकारी अफसर बता रहा है। हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, बीएलए मुकम्मल कंट्रोल संभाल चुकी है हर चीज का। अगर मैं एक्सप्लेन करूं सूरत हाल, इनके हाथ से सब निकल गया। Breaking news coming in from Pakistan. Yet again, a roadside bomb exploded near bus carrying Pakistani military. Now, BLA, the Balochistan Liberation Army, has claimed that 90 Pak personnel have been killed. According to a press release that has been issued by the Balochistan Liberation Army, they said that they have targeted a convoy occupying Pakistani military a few hours ago in a wiped Fidain attack near Rakshan Mill on the RCD highway in Noshki. The convoy consisted of 8 buses, one of which was completely destroyed in the explosion. This is according to the BLA press release that immediately after the attack by the BLA, advanced forces completely surrounded yet another bus, systematically eliminating all military personnel on board, bringing the number of enemy casualty, that means the Pakistani military casualty, to 90. The BLA has accepted the responsibility for the attack and has said that they'll be releasing more information to the media soon. Joining me live on this broadcast from Balochistan is Bahut Baloch. What has transpired here? What kind of attack is this? And where the Pak media reports once again are claiming around 5 casualties, what the BLA is saying that there are around 90 Pakistani soldiers that they have neutralized. जी, ये नोशकी का इलाका है, वो डिस्ट्रिक्ट नोशकी है। नोशकी शहर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े जो RCD शारा है उस पर एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद मज़ीद जो धमाकों की आवाज़ आई है, फायरिंग की आवाज़ आई है। तो यहाँ पर 2 बसेज है जिसमें जो हमले की जद में आए हैं। पाकिस्तान फौज के कानवाय थे जिनमें 8 बसेस थे और 2 मजीद गाड़ियाँ, उनमें कार गाड़ी शामिल थे, उनको निशाना बनाया गया है। हलाकतों के हवाले से बलोच लिबरेशन आर्मी ने 90 एहलकारों की हलाकत का अपने बयान में कहा है, जबकि नोशकी जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर इन्होंने इमरजेंसी नाफिज की है। वहाँ पर नोशकी के हेडक्वार्टर पाकिस्तान फौज की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जबकि एम्बुलेंसेस की आमद रफ्त जारी है। इसके अलावा यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की गश्त जारी है जो मुमकिन तौर पर अलाक एहलकारों की लाशें हैं या कि जो जख्मी हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं कोयटा की जानिब। जी जी, मेरा जो सवाल था कि एक तरफ पाकिस्तानी जो आर्मी है वो कह रही है कि सिर्फ 5 लोग घायल हुए हैं बहुत बलोच जी, और साथ ही में जो BLA का जो स्टेटमेंट है वो 90 लोग के आसपास वो कह रहे हैं कि उन्होंने एलिमिनेट किए हैं। तो एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हमारे साथ वी आर आल्सो जॉइंड बाय मेजर जनरल संजय मेस्टन। सर, आई विल कम टू यू। आई हैव जस्ट क्वेश्चन, आई हैव टॉस्ड अ क्वेश्चन टू आवर रिपोर्टर लाइव फ्रॉम बलोचिस्तान। आई एम आस्किंग हिम अबाउट as to there's a difference between what the Pakistani army is claiming and what the BLA is claiming. जी, बहुत बलोच जी बताएं।
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अभी जो ताज़ा मालूमात वो दे रहे हैं हुकाम की जानिब से, वो कह रहे हैं 11 हलाकतें हुई हैं, जिनमें से 40 जख्मी एहलकारों का भी कहा जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से जैसे कि जाफर एक्सप्रेस के वक्त हमने देखा या दूसरे वाक़यात हुए हैं, इस तरह के डिफरेंसेस देखने में आती है। अभी नौशकी के जो हमला हुआ है, हमारी मालूमात के मुताबिक जिस तरह BLA ने खुद अपने बयान में भी कहा है कि 2 बसेज इसका निशाना बनाई है। जो मीडिया पर सिर्फ एक बस को दिखाया जा रहा है जो सुसाइड बॉम्बर ने जिसको निशाना बनाया है, जबकि जो BLA के फतेह स्क्वाड है उसने एक और बस को निशाना बनाया है। यहाँ तक की मालूमात आ रही है, इत्तलात आ रही है कि उनको एक एक करके मारा गया है। तो इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि हुक्काम की जानिब से छुपाया गया है, बहुत सी हलाकतों की जो है तादाद को छुपाया जा रहा है। जी मेजर जनरल संजय मेस्टन, this is yet another attack. Now, this is not the second attack, if we may, against Pakistan, because just early this morning, Hafiz Saeed's nephew has been killed. Hafiz Saeed himself is injured. Then this attack on Pakistani military yet again, and this is coming in less than a week when the Jafar Express was attacked, and like the BLA, contrary to what Pakistan was claiming, that over 100 of Pakistani soldiers has been eliminated. So Pakistan appears to be in a very bad shape, on the back foot completely. Yeah, absolutely right. Pakistan Army is absolutely on a back foot. And whatever media statements are coming from the ISPR, they are all highly exaggerated, or I would say they are absolutely false. You know, you see this bus itself. I think there would be about 40 odd passengers in this. I'm quite sure, seeing the devastation in the bus, and when I was in Afghanistan, I recollect I've seen such similar sights of the US Army buses vehicles being blown up. I've seen everyone in the vehicle has just died. This is a huge IED blast. And this is a suicide bomber blast. So apparently everyone in this bus would have sustained casualties, and I think they would have all died. That is my assessment. So at least 40 plus would have died. And if it is one bus. Now BLA says there's another bus which the ISPR is not showing that. But if there is a second bus also, obviously it is apparent that the casualties would be around 90, which the BLA is stating. But if it is one bus, definitely it is 40 plus casualties, we can safely assume. But the fact of the matter is, the question you raised, the way things are going on, I think the war by BLA for their liberation, for their independence has begun in right earnest. And now this war is not going to stop. The fire is not going to stop. The fire has actually started by the Pakistan Army, because they themselves have been terrorizing the Baluchis since so long. And till how long they can sustain this terrorism? And therefore now the reverse gear has started. The Baluchis, armed Janta, including children, including women, now are up in arms. They are rebels, and they are now heading for our independence, and therefore the fire is there. You will keep hearing such kind of news practically every week. Also, sir, I would like to ask you that the BLA was quick enough to issue a press release, but like the last time, when there was an attack on Jafar Express, there was complete silence from the side of Pakistan. Neither the Defense Ministry nor the Home Ministry, nobody came out and gave a statement. And yet again, even after the BLA has issued a statement, we see complete silence from the side of Pakistan authorities. What all we're learning, what all they're claiming is only on the basis of Pak media sources. No, absolutely true. See, one thing is there. Whoever is victorious in any operations, they are the first to report. There is no doubt. These are basic facts of life. So in both the cases, they have suffered. They were the ones who were targeted. Obviously, they have gone into a hiding mode and delaying tactics, and thereafter resorting to false propaganda like nothing has happened. Let me even today tell you, I've been a commando instructor myself, and such operations one has done. Let me tell you, in this case also, the train, the Jafar Express train, I totally agree with the BLA. 214 people of Pakistan Army would have been just killed. There is no doubt, because they were very clear in this thing. They were telling that their target was 48 hours deadline, and they will start executing all the hostages. And hostages means the Pakistani soldiers who were apprehended. So they have been very clear. The Pakistan Army, if they would have been so victorious in this, they would have done such highly propaganda. They would have shown videos. Nothing they have shown. So what the BLA is showing, they are showing it piecemeal, very timely. So to keep discrediting Pakistan Army,
and I may add, if you permit, I feel that in the Pakistan army today, there is a situation going to arise where the Jawans of Pakistan army will start doubting their own officers. And therefore, there can be a rebellion in Pakistan army. And that is going to be the worst for this so-called professional army. So things are not very conducive for the Pakistan army. It is quite bad for them. And I think what I can state confidently, the BLA's war in earnest has begun. They have struck and they want to achieve their independence, and therefore such kind of targeting attacks, ambushes will continue on Pakistan army till the day Pakistan army does not realize that they are doing wrong things against the Baluchis. मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पैगाम देता हूँ कि आज बलूचिस्तान में पूरे एशिया में बलूचिस्तान की माएँ बच्चे की पैदाइश के वक़्त मरती हैं। आज बलूचिस्तान के अवाम, अक्सरियत अवाम की, इंसान और जानवर एक ही घड़े में पानी पीते हैं। 60% बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, हमारे स्कूल बंद हैं और हमारी शायराएँ महफूज नहीं हैं। बदतरीन करप्शन है, सबसे ज़्यादा गुर्बत और जहालत बलूचिस्तान में है, लेकिन बदकिस्मती सबसे ज़्यादा करप्शन और कमीशन खोरी बलूचिस्तान में है। हमारे 10 लाख से ज़ायद नौजवान मनशियात पे लथपथ हैं, हमारी बच्चियां मनशियात इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे तालीमी इदारों में मनशियात आ चुका है, हमारे ब्यूरोक्रेसी खादम के बजाय बनने के बजाय फ़िरौन बने फिरते हैं, बत्ताखोरी उरूज पर है। तो इन तमाम हालात को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, जिसने वादा किया था कि करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, कमीशन खोरी का ख़ात्मा करेंगे, मेरिट को बहाल करेंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे, बॉर्डर को खोलेंगे। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो अज़म करे, सादा ज़िंदगी इख्तियार करे, शाहाना तर्ज ज़िंदगी छोड़ दे, ये सरीना होटल के खाने छोड़ दे, सादगी पे आ जाए, कौम पे पैसे खर्च करे, ये बिल्डिंग को ज़्यादा इंसानों पे पैसे खर्च करे। लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम को इस दर्द और तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए अपने वक्त, अपनी सलाहियतें, अपने दौलत खर्च करें। इंशाअल्लाह ये बच्चे, बलूचिस्तान की माएँ, बलूचिस्तान के लोग आपको दुआएँ देंगे और ये दुआएँ आपको इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगी। हाँ सुना, फिर बलूचिस्तान जाएगा। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब शहीद हो गए हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा जी कि मेरी जान खतरे में, और थोड़े दिन पहले इन्होंने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और वो बताते हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं कि वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से लचक पैदा करें। लेकिन मुफ्ती साहब ने अपने मौक़िफ़ के हवाले से लचक पैदा नहीं की, और पश्तूनों की नज़र में या पश्तून नौजवानों की नज़र में उनकी बड़ी अहमियत और बड़ी वक़्त थी। लेकिन अब वो कत्ल हो गए हैं। एक धमाका किया गया और उस धमाके के नतीजे में दीवार के पास आईडी लगाई गई है, फिक्स एक बम किया गया था, और मुफ्ती साहब जब वहाँ करीब थे तो धमाका किया गया, जिसके नतीजे में मुफ्ती साहब शहीद हो गए। ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत खुलकर तनकीद करते थे। जब ये मंजूर पश्तीन साहब की पार्टी ने एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया था अक्टूबर में, तो उस वक्त भी ये काफ़ी मुतहर्रिक थे। फिर आर्मी चीफ ने जब कुरानी आयात सुनाकर हवाला दिया, तो उसके बाद इन्होंने बहुत तनकीद की थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर। ख़वातीन के एहतराम के हवाले से जब उन्होंने बात की, उसके बाद DGISPR पे इन्होंने बहुत तनकीद की, उनके बयानात पे उन्होंने बहुत तनकीद की, और ह्यूमन राइट्स के लिए ये आवाज़ें उठा रहे थे। इमरान खान साहब के मामलात में ये आवाज़ें उठा रहे थे। जो जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत की जा रही है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ ये आवाज़ें उठा रहे थे। तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब एक इख्तलाफी आवाज़ थे, एक इंडिपेंडेंट आवाज़ थे और एक नज़रियाती आवाज़ थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर का निशाना बनने वालों के साथ खड़े हो रहे थे। بغير كشتكونا ميديا خالي كانت بيتا كانت مرچ ميتو كان ما هبارن पंजाबी मजाक समझी परचैशी नफ्सियात इसी खसलत तमाम कि बंगाल टेमा में बू जर्नल न्याजी यकरोच पेशगुशी की बंगाली हैसियत छे कर दे मर्दुमंत मायशा ख़त्म करन आखिर नतीजे में बू हमारे 90,000 वती फौजी है पतलून निश्तन दर कफ्तंत और इसी खसलत मर्चम है मर्चम जानगने मर्चम पो बैगने गोरिला जंग छे बलूच मच्छी वती पज्जारे जंगा दीन पानी और ये जंगे वास्ता ये नीले ज़िरे वास्ता ये सरज़मीने वास्ता मैं अमा शहीदा अमा वरना वती होंदा था कि अपा चार का साथ न बन
be bale ayan matara tokkor kutai zarzamine wasta ani tokkorani bi mera jawab duragi o kasse bhi agar main shahid नहीं होना नहीं मैं कौमी तेरी के सौदा अजन थी थोड़ा माशुमा बेचारी क्या सौदा गिरानी दीमा मारा उश्तगी है तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना। जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। पाक फौज पर अमरीकी अराकीन पार्लियामेंट का ताबड़तोड़ हमला, आर्मी चीफ पर खुले आम इल्जामात। नाजरीन, अमरीकी कांग्रेस के अराकीन ने अपनी तोपों का रुख बराह रास्त पाकिस्तानी फौज की क़यादत की तरफ कर दिया है। संगीन तरीन इल्जामात, सख्त वार्निंग्स और जमहूरियत बहाल करने का खुला मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर वाज़ेह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज मईशत पर कब्जा जमा रही है, जमहूरियत का गला घोंट रही है और रियासत को यरगमाल बना रखा। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ अमरीका नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें उठ रही है। शौकत बसरा का ऐलान, पाकिस्तान की 77 साल तारीख का निचोड़ ये है कि एक इदारे ने मुल्क के तमाम इदारों को तबाह करके रख दिया है। यूनिवर्सिटी के तलबा भी बोल पड़े, नौजवान नस्ल खुलकर मुजाहमत कर रही है और रियासती जबर के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। जी अगर बाज बार गोए तहा जी वजह तासील किरक में तासील करीब करीब था हमें जी जा गुजालबुल जनक बुतगा में वाज कर चस्तनक बुतगा अगर ईशन ता केस बुतगा ईशन पिस्साम निवासता मिचियन निवासता ईशन लेटर देम दे बुतिंचे गवर्नमेंट इंतजाम ही नहीं होगा कि वजह तई जागा गलती करता वती जागा ब्यार अगर पिस्सा ने यार दो वजह नाखोर बिगते हैं मर्ची नाखोर होते ये जागा गलती करता तो ईशरा ब्यार हां जी लाश एक हफ्ता एसी साहब दूषी ने तनगी एक रिंग बार को तहसील दात कोर्ट कनगा नहीं कि वजह ये जागन लाश कब तक गरीबा जागन बिल्ले मुद मेरनते के मैं गुलाम जोड़ बेवा उसकिन गए के जाग चस्त गुगाएश वशापा चस्त कने सोपा कुछक दौर देगा जी शाश वजह जालबुलिश में कुछ था दूषी बढ़ता तनगी मैं इंतजाम के रास्ते का 24 घंटे पूरे ने आई लाश कपता वंडो के जाग रोडा ने तरह कब तक शमरा मासु के अंदर बच्ची मादा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे माता वदीगा इधर जी शो के वाकया बूता ग्वारगोआ ओदा मतलब इसे के साला बंदे मर्दमा एक फैमिली असर हमला करता ओदा एक में लेडीज एक्सपायर बूता वफात बूता मर्ची रोचा आई जनाजा बूता वही लोग वाजारा अगवा कनक बूता और मर्ची रोचा खल्लगा आई लाश बरामद बूता मस्त शुदा है लाश यही इंतहाई टार्चर करता तीर जाता कार्च जाता तशद्दुद शिकार करता वो वीरा ने जाके दौड़ता था वो लेवी जाता डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सर करता वो माँ फैमिली आवारी आते डिप्टी कमिश्नर गेट है दफा इत्तजाज तौर निश्तगा माँ मुतालबा करना फैमिली मुतालबा हमेशा के ये 24 घंटा वस्ता तनगी इंतजामिया नेगा सरकारी मशीनरी नेगा एच नेगा ना राबता हस्ते ना का हस्ते रिस्पॉन्स हस्ते ना ये मसले बारे जाके छापा बूता ना कोई मतलब इसे के कार्रवाई बूता माँ को इधर जिम्मेदार माँ वक्त गप्पा मनी जिंदार शर्म के माँ ये नाकारा है डिप्टी कमिश्नर ये नाकारा है निज़ाम अच्छे मुतालबा करना कि तो कार्रवाई पे कहाँ कार्रवाई ये चौके दा उम्मीद है जिंद निस बोले रस्मन फैमिली मजबूर हैं देखा राय जिंद निस्ते हैं फैमिली कुजा भरो ज़ाहिर माँ डिप्टी कमिश्नर है जिंदे शख्स सर इत्तेमाद नहीं भले मैं इदारा के हस्ते हैं मौती इत्तेजाज रिकॉर्ड करने के खातिर दात का लाश मार गोने में मौजूद है तमाम वक्त तक इंतजामिया नंगा शर्र रिस्पॉन्स न बूता शर्र कार्रवाई न बूता गोड़ा फैमिली है मैं फैसला हमेशा मैं इंतजार आया आगे मतलब शर्र हस्ते जवाब हमारे तक नबू गोड़ा मैं मजबूर है मैं ये तजूर सीपे करें बंद करना तमाम वक्त तक कातिल गिरफ्तार न बूता मेहरबानी। आपको बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ बैठना पड़ेगा, बारक बलोच को सलाम करना पड़ेगा, उन्हें एहतराम देना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनकी बात को गौर से सुनना पड़ेगा, उनके मुतालबात को मानना पड़ेगा और तमाम जायज बातों के सामने सर नीचा करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बलूचिस्तान की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं। देखें ये रीजन जो है ना, इसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक ही तरह के लोग हैं, इनके अंदर गुलामी नहीं है, ये गुलामी कबूल कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है कि ये गुलामी कबूल कर लें, ये हो ही नहीं सकता। मेरी कोई शनाख्त नहीं है, ना मैं बलोच हूं, ना मैं पठान हूं, ना मैं पंजाबी हूं। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू